Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में 13 जनवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज़ किया गया, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, और इसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग पूछी गई है कितनी रहेगी, तो 80 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग। फिर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री कितनी कंट्रीज़ में है अभी, तो 62 कंट्रीज़ में इंडियंस वीज़ा फ्री जा सकते हैं, राइट, और रैंक रहेगी 80। वहीं पर अगर पूछा जाए 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो 2023 में इंडिया की पोजीशन थी 83rd, और 58 कंट्रीज़ को यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी। और अब 2024 में अगर हम देखें तो 62 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री और 80 रैंक रहेगी, मतलब इंप्रूव हुई है। टॉप पोजीशन पे 6 कंट्रीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं 6 कंट्रीज़? वो ये हैं आपकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। लोएस्ट पोजीशन पे या फिर हम बोले वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का रहेगा ग्लोबली, वो है अफगानिस्तान का। 104th रैंक पे आता है ये, और 28 नेशंस को यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है वीज़ा फ्री जाने का इनके पास। हेनले पार्टनर्स की बात करें तो डॉक्टर ज़ुरेक स्टेफन यहाँ के CEO रहेंगे। हेडक्वार्टर लंदन UK, एंड 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन MSCI EM इंडेक्स। MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या पूछी गई, क्या रहेगी, तो इंडिया की रैंक आ जाती है सेकंड। फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है, वो है चाइना की, राइट। तो याद रखेंगे यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और ये MSCI EM इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ये आपका जो इन्वेस्टेबल बेंचमार्क होता है जो इंडेक्स का ऑफ द इक्विटी मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे 24 एमर्जिंग कंट्रीज का यहाँ पे एक मिड कैप एंड लार्ज कैप सेगमेंट रहता है, उनको कैप्चर किया जाता है, करेक्ट। तो सेकेंड रैंक रहेगी इंडिया की इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है चाइना, ठीक। फिर थर्ड पोजीशन पे पूछा जाए तो ताइवान थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पर साउथ कोरिया, एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका ब्राजील, ठीक है। अगर इंडिया की पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का क्या आपका इंडेक्स रहेगा, तो इंडिया का था 17.1%, और ये एक्सपेक्टेड है 2024 के स्टार्टिंग में कि ये 20 टच कर जाएगा। अगर मैं बात करूं चाइना का कितना इंडेक्स है, वो है 26.6। चलिए, इवन हम देख रहे हैं इंडिया में पिछले 11 सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है, फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, और हाईएस्ट इन्फ्लोज हमें देखने को मिले हैं इंडिया में इन द लास्ट 7 ईयर्स। इवन हम देखें तो इनवर्ड रेमिटेंस के हिसाब से भी इंडिया में वो एक लौती कंट्री है जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रैक किया, और इस बार हम $100 बिलियन का, हमने $112 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला है।
चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स। IRFA इंडेक्स अभी लॉन्च करने वाली दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है? जर्मनी की फ्लोरिडा USA बेस्ड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एंड जुपिटर वैगन्स, करेक्ट। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। ये 15वां एडिशन था, प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2023 में। ठीक है, उसके दौरान ये IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये IRFA इंडेक्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल है जो कि इंडियन रेलवे फ्लाइट एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसमें जो भी हम बेटर कर सकते हैं उस डाटा के एनालिसिस करके वहां पे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। फिर जुपिटर वैगन्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? मिस्टर विवेक लोहिया, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, और इसको 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करें तो MD एंड CEO रहेंगे अविनाश गुप्ता, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसने अपने ऑपरेशंस 1995 में स्टार्ट करे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ लेटर ऑफ अरेंजमेंट एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दो अभी साइन किए गए, किस कंट्री के साथ, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे, अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये पहले तो ये देख लेते हैं किस कंट्री के साथ। तो इंडिया ने UK के साथ यहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अगर बात करूं मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, ये बेसिकली इंडिया और UK के बीच में साइन हुआ ताकि इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, कैडेट्स को एक्सचेंज कराया जा सके एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। फिर लेटर ऑफ अरेंजमेंट जो साइन हुआ है इंडिया की DRDO एंड UK की DSTL, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इन दोनों के बीच में ये एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट साइन हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली इंडिया किस IIT ने एक नया कैंपस सेटअप करने की बात की इन श्रीलंका के कैंडी एरिया में एक नया IIT सेटअप करेंगे जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा IIT सेटअप करेगा? तो ये है IIT मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड IIT मद्रास एक नया टेक कैंपस सेटअप करेंगे कैंडी श्रीलंका में, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहाँ से जो भी UGC यहाँ पे गाइडलाइंस देंगी, जो भी उनका करिकुलम होगा, जो भी यहाँ पर कोर्स बनेगा, वो सारा UGC के द्वारा अप्रूव करा जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रहेगा? वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को? तो अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप को। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी? रशिया के पास रहेगी, राइट। फिर अभी रिसेंटली इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेंगे युगांडा नाम समिट में? कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए किनको सम्मानित किया गया था MS स्वामीनाथन अवार्ड से, तो प्रोफेसर BR कंबोज को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। फिर अभी रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन, ये एक एक्सरसाइज हुई थी, राजस्थान में हुई, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई? तो इंडिया एंड UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, SBI's proposed dollar denominated bonds gets which rating from S&P and Fitch? S&P and Fitch रेटिंग्स, इन दोनों के द्वारा अभी SBI के प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को कौन सी रेटिंग मिली? तो BBB नेगेटिव रेटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है फॉर द SBI's प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि S&P एंड फिच के द्वारा इनको कौन सी रेटिंग दी गई? BBB नेगेटिव की यहां पर रेटिंग दी गई है। यहां पर याद रखेंगे SBI ने रेज किया $600 मिलियन वाया 5-year सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स रेट नोट्स, करेक्ट। 5 साल की मैच्योरिटी रहेगी, कूपन रेट रहेगा 5% का, पेएबल सेमी एनुअली, ठीक है। और ये जो बॉन्ड्स है ये इशू किए जाएंगे थ्रू SBI लंदन ब्रांच इन UK एज ऑफ January 17 एंड इनको लिस्ट किया जाएगा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडिया के जिफ्ट सिटी में इन अहमदाबाद गुजरात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं IPPB एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन द
रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रूरल एरियाज में सर्विसेज जैसे लोगों को हेल्प करना अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, फिर उनके पेंशन प्लान के लिए, फिर कहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए, कहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, कहाँ पे लोन्स लेके वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करके किसी प्रॉपर्टी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए आईपीपीबी ने अभी किनके साथ टाई अप किया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो भी एक्टिविटीज हैं उनके अंडर यहाँ पे ये हेल्प करेंगे आईपीपीबी के साथ मिलके, ताकि रूरल एरियाज में ये सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सकें। और इसी के लिए इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। यहीं पर अगर हम देखें आईपीपीबी की बात, तो सीईओ कौन रहेंगे, वेंकटरमन जयंती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो सीईओ अरुण मिश्रा, हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे अभी रिसेंटली एक्सपोसेट, ये PSLV C-58 रॉकेट की मदद से एक्सपोसेट सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसरो के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जेमिनी की अगर मैं बात करूं, जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। फिर इसी के साथ साथ किन्होंने अभी अंडर 19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप को जीत लिया है अंडर 19 कैटेगरी में, वो है अनाहत, राइट। इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टाइटल को जीत लिया फॉर अंडर 19। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 जनवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 जनवरी को। कॉपीराइट लॉ डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 जनवरी को। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज विल इंक्लूड इंडियाज FAR बॉन्ड्स इनटू देयर एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम डैश। तो अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड ये इंक्लूड करेंगे इंडिया के FAR जो कि होता है फुल्ली असेसिबल रूट बॉन्ड्स को इनटू देयर एमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 2024। ठीक है, एंड एज पर्पज द प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट वोल्स विल बी फेज्ड इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग स्पेनिंग ओवर 5 मंथ्स, मतलब फेज्ड वाइज ये यहाँ पर इनकी इंप्लीमेंटेशन की जाएंगी ओवर 5 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024 और जनवरी 2025 तक जाके ये सारे यहाँ पर लिस्ट किए जाएंगे। एंड इवन सितंबर 2023 में यहाँ पर JP मॉर्गन ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स सूट फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद इंडियन रुपी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट currency component following the Chinese renminbi and South Korean won within the Bloomberg Emerging Market Local Currency Index. नेक्स्ट आ जाता है फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने ऑनर किए 4 विनर्स को फॉर टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में उत्साह बनाए रखने के लिए, राइट, फॉर देयर जो वो अपना सेक्रीफाइस करते हैं, राइट, फॉर देयर एंड्योरेंस, फॉर देयर स्पिरिट, फॉर देयर टीम वर्क, राइट, फॉर देयर मोटिवेशन, करेक्ट, कि जो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आगे भर के निकल आ सकते हैं, इसीलिए ये टेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, करेक्ट। और ये टेंजिंग नॉर्वे यही क्यों दिया गया था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो टेंजिंग नॉर्वे कौन थे, ये वो पहले व्यक्ति थे, वन ऑफ द फर्स्ट 2 पीपल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट को क्लाइम किया था ऑन 29 मई इन 1953। इनको ऑनर करने के लिए इस अवार्ड का नाम दिया गया और 4 लोगों को यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है लेट मिस सविता कंसल, ये इनका निधन हो चुका है इसलिए पोस्ट ह्यूमसली इनको मिला, फॉर लैंड एडवेंचर, ये उत्तराखंड से हैं, तुलसी चैतन्य वाटर एडवेंचर के लिए फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अंशु कुमार तिवारी ये इनको एयर एडवेंचर के लिए अवार्ड मिला फ्रॉम बिहार, एंड प्रवीण सिंह इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इस अवार्ड के साथ साथ इनको एक स्टैचू, ब्रॉन्ज का स्टैचू, एक सर्टिफिकेट, एक ब्लेजर विद अ सिल्कन टाई या फिर एक साड़ी एंड एक 15 लाख रुपए कैश प्राइज यहाँ पर इनको लोगों को दिया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, इन्होंने रिसीव किया अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 इन दुबई UAE में अभी 12th एनुअल मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे दुबई UAE में, वहां पर इनको फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को सम्मानित किया गया। ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर हिज रिकॉग्निशन ऑफ फीफाज इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू द फुटबॉल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव, जैसे इन्होंने वीडियो असिस्टेंट रेफरी लॉन्च किया, डोपिंग डिटेक्शन लॉन्च किया, प्लेयर इंजरी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला फुटबॉल में। इवन अगर मैं बात करूं फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, वो हैं कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन नेवी ने अभी रिसीव किया पहला इंडिजीनियसली दृष्टि 10 स्टारलिन ड्रोन को। ये दृष्टि 10 स्टारलिन ड्रोन याद रखेंगे 70% इंडिजीनियस रहेगा। इसको अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया एंड इनको फिर डिलीवर किया जाएगा टू इंडियन नेवी। ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, करेक्ट। इसको हैदराबाद तेलंगाना फैसिलिटी में ऑफ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया जाएगा, करेक्ट। फिर इसी के साथ याद रखेंगे दृष्टि 10 स्टारलाइनर, जैसे अभी हमने देखा, इसको अडानी ग्रुप एंड इजराइल की एल्बिट सिस्टम बना रहे हैं। 70% इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा इसमें। 36 घंटे की है फ्लाइट एंड्योरेंस है इसका। 450 kg पेलोड कैपेसिटी रहेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताओ, अर्थ रोटेशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 जनवरी को। फिर वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस कब ऑब्जर्व करते हैं? 6 जनवरी को। नेशनल बर्ड्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 5 जनवरी को। एंड अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 जनवरी को। ये याद रखेंगे, वर्ल्ड ब्रेल डे, करेक्ट। और डीआरडीओ का 66 फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1 जन को हमने ऑब्जर्व किया डीआरडीओ का 66 फाउंडेशन डे। नेक्स्ट आ जाते हैं NSPAD प्रोजेक्ट। इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, मोबाइल एप्लीकेशन टू मॉनिटर द डिजीज आउटब्रेक। फिशेज में, मछलियों में डिजीज आउटब्रेक्स को मॉनिटर करने के लिए क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या इमेजेस आ रही हैं, राइट, किस चीज़ के उनसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कितनी सिवियर वो डिजीज है, करेक्ट, कौन कौन सी स्पीशीज अफेक्टेड है, किस एरिया में अफेक्टेड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए NSPAD प्रोजेक्ट के द्वारा ये रिपोर्ट फिश डिजीज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसको डेवलप किया गया ICAR के आर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। ये लखनऊ यूपी में है, करेक्ट। अंडर द प्रोजेक्ट NSPAD प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, करेक्ट, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? बेसिकली ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये इंप्लीमेंट की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,050 करोड़ रुपए। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट थी, 2021 से 24-25 तक। और ब्लू रेवोल्यूशन को लाने के लिए, राइट, ये लॉन्च किया गया था। इसका एम था टू ब्रिंग द ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना के ओरियन स्पेस ने लॉन्च किया उनका मेडन रॉकेट ग्रेविटी 1। आई रिपीट, ओरियन स्पेस ये एक चाइनीज स्पेस स्टार्टअप फर्म है जिनके द्वारा ग्रेविटी 1 ये लॉन्च किया गया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ येलो सी इन चाइना। ये एक इन्होंने ग्रेविटी 1 ने 3 युनयाओ 1 वेदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया टू लो अर्थ ऑर्बिट एट 500 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। तो डायरेक्टली याद रखेंगे, चाइनाज ओरियन स्पेस जिनकी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा मेडन रॉकेट ग्रेविटी 1 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो अभी यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया पंचायत फ्री फ्रॉम GBV जेंडर बेस्ड वायलेशन। ये एक हैंडबुक रहेगी फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा। बुक क्या है? पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ 1 डे नेशनल वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द जेंडर बेस्ड वायलेशन। ये न्यू दिल्ली में हुई, करेक्ट। एंड इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन कोलैबोरेशन विद UNFPA इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइट। एंड इन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप करने में काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया है। एंड यहीं पे याद रखेंगे, इस डे को हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। एंड इस साल 2024 में इनका 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? फर्स्ट एवर नेशनल यूथ डे या फिर विवेकानंद जयंती। तो 12 जनवरी 1985 को इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 80 2024 में एंड 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। देन इंडिया की रैंक रहेगी सेकंड इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और चाइना ने यहाँ टॉप किया। थर्ड पे वियतनाम। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एंड जुपिटर वैगन्स इन्होंने लॉन्च किया इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स को। इंडिया एंड यूके के बीच में एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया फॉर डिफेंस कोलैबोरेशन इन R&D एंड कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम। देन IIT मद्रास ने स्टैब्लिश किया एक नया कैंपस। ये स्टैब्लिश करेंगे एक नया कैंपस कहाँ पर? कैंडी, श्रीलंका में। ये एक टेक कैंपस होगा, टेक इंस्टीट्यूशन। देन SBI प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड गेट्स BBB नेगेटिव रेटिंग फ्रॉम S&P एंड
फिच। देन आईपीपीबी एंड हिंदुस्तान जिंक इन्होंने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन राजस्थान। ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज एफएआर बॉन्ड टू इनटू इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 2024। नेक्स्ट, फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो इन्होंने रिसीव किया अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023 इन दुबई। इंडियन नेवी रिसीव द फर्स्ट इंडिजीनियस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन फ्रॉम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। NSPAAD लॉन्चेस द रिपोर्ट फिश डिजीज मोबाइल एप्लीकेशन टू मॉनिटर द डिजीज आउटब्रेक। एंड चाइना के ओरियन स्पेस ने लॉन्च किया अपना मेडन रॉकेट ग्रेविटी 1। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह इन्होंने लॉन्च किया पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेशन अ हैंडबुक फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया गया 12 जनवरी को। तो दोस्तों ये है हमारे आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रिवीजन पार्ट पर। ये आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा एंड जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नहीं आते होंगे आप सभी के लिए सजेशन की नोट्स ज़रूर से बनाइएगा, उससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच मिनिस्ट्री कंडक्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन छिलका लेक अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। देखो सबसे पहले मिनिस्ट्री देखते हैं तो आपको चीज़ें ये समझ आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया छिलका लेक में अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। इससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, और छिलका लेक हम जानते हैं ये क्या है, ये एक रामसर साइट है, तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसके आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए, और हम जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म का भी प्रभाव रहता है। काफ़ी टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बल्कि ग्लोबली यहाँ पर लोग आते हैं इस साइट को विजिट करने के लिए, छिलका लेक को विजिट करने के लिए, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में। तो यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी कि कैसे आप अपने एरिया को साफ रख सकते हैं एंड जो टूरिस्ट आ रहे हैं हम उनको कैसे कैटर कर सकते हैं। ठीक है, रामसर साइट हम जानते हैं, ये रामसर ब्यूरो की अगर बात करें तो ये कहां पर हेडक्वार्टर रहेगा इसका, ग्लैंड कहां है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ 2024 में कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, 75। चलिए तो आप यहां देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन छिलका लेक। इसी के साथ साथ बताओ अभी किस कंट्री ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी फॉर फूड पार्क्स इंडिया में, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देन इंडिया का पहला फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म प्रमोट करने की बात की गई किस स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा, और गुजरात में भी कहां पर, द्वारका में। ठीक, फिर इसी के साथ बताओ इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। आई रिपीट, इंडिया का पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, ये कहां पर रहेगा, ये दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने नोटिफाई किया रिवाइज्ड प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को अंडर विच शेड्यूल टू एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिवाइज किए हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को अंडर शेड्यूल एम। अब देखो ये क्यों रिवाइज किए गए, पहले आपको यह समझना पड़ेगा इजी सेंस में। हमने काफ़ी बार पढ़ा कि जो फार्माक्यूटिकल जो मेडिकल सेक्टर है इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, राइट, ये हम इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इंपोर्ट हम जानते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी क्या चाहती है कि सब कुछ हम इंडिया में ही लाएं, सब कुछ हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें एंड उसको फिर हम एक्सपोर्ट पे मेजर जो फोकस रहता है ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें। तो सिमिलरली अगर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP, ये अच्छी होंगी, राइट, हम ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के तरीके से लाएंगे। और ग्लोबल स्टैंडर्ड के तरीके से लाने का रीज़न क्या है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे तो हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शेड्यूल M के अंडर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स है ना उनको यहाँ पर अमेंड किया है, राइट, रिवाइज किया है। तो मार्क करके चलेंगे अंडर शेड्यूल M। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर इसके अलावा आपसे मैं एक दो चीज और पूछूं
जैसे अभी बताओ 200 ग्रीन बसेस किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? असम के द्वारा लॉन्च की गई ग्रीन इनिशिएटिव के अंडर पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए गुवाहाटी को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर रहेगा? वृंदावन में। कहां पर रहेगा? वृंदावन में। यह कहां पर है? यूपी में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ वो पहली यूटी कौन सी बनी जिन्होंने भी रिसेंटली पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट किया? तो पहली यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करेंगे जैसा इंपॉर्टेंट डेज नाम है। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 से 17 जनवरी के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक, एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। एंड रोड सेफ्टी के साथ साथ जब हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे जो डेथ होती है उनको भी प्रिजर्व करने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो रोड सेफ्टी पे ध्यान देने की बात की गई, ऑब्जर्व किया जाता है 11 से 17 जनवरी के बीच। ये तो है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। अगर मैं बात करूं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की, तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा पहली बार 2024 में, करेक्ट। 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को। और एक और चीज आ जाता है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ये ग्लोबल यूएन रोड या फिर यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये मई के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। 15 से लेके 21 मई तक हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था नेशनल रोड सेफ्टी वीक की बात करें तो पहली बार 1989 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज पर। अभी रिसेंटली पंजाब वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है ना उनकी लोकेशन में, उनके एरिया में, उनको मैप पर लॉन्च किया है, राइट। उसको मैप पर अलर्ट के तौर पे उन्होंने डाल दिया है। तो पंजाब वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने मैप किया ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है मैपल्स मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि डेवलप की गई है सीई इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड मैप माई इंडिया के अंडर। इनके द्वारा यहाँ पर मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है, जो भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है, उनको मैप पर यहां पर लाया गया है, उसको मैप पर यहां पे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने पार्टनर किया डिजिवृद्धि के साथ टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स को वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनके लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिजिवृद्धि के द्वारा, राइट। तो किस बैंक ने इनके साथ पार्टनर किया? वो है कर्नाटका बैंक ने। डेयरी फार्मर्स को ग्रो करने के लिए इनको जो भी लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैश इन हैंड चाहिए होता है, करेक्ट, अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए इजीली, इसके लिए कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया है डिजिवृद्धि के साथ। अगर कर्नाटका बैंक लिमिटेड की मैं बात करूं, एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? एसएच शर्मा, हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका, एस्टैब्लिश किया गया 1924 में। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये टैगलाइन रहेगी। डिजिवृद्धि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो फाउंडर एंड एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? राघवन वेंकटेशन, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका, और 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। फिर इसी के अलावा कुछ और करंट अफेयर्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताओ स्टार्टअप एक्सपो कठुआ में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। फिर अभी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ, किस स्टेट में हुआ था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल? गुजरात में हुआ था। और हम जानते हैं अयोध्या को लॉन्च किया जाएगा, अयोध्या हमारे राम मंदिर को लॉन्च किया जाएगा 22 जनवरी को। तो उससे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर अयोध्या के एयरपोर्ट को रीनेम क्या किया जाएगा? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरकास्ट किया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू स्लो डाउन फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर टू जस्ट 2.4%। अगर ये बात करें तो ये है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी 2024 की। इसमें इन्होंने बताया कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी? 2.4% रहेगी 2024 में। अगर मैं 2023, 2022 और 2021 की बात करूं तो 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 2.6%। 2022 में कितनी थी? 3%। और 2021 की बात करें तो 6.2% से ग्लोबल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही थी। इसी के साथ साथ इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है। इंडिया की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की, जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है 2024 के लिए, वो कितनी रहेगी? 6.4% प्रोजेक्ट की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट अजय बंगा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1944 में। और कितने मेंबर रहेंगे इसके? 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ सिक्योरिटी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बिम्स्टेक के और थर्ड सिक्योरिटी जनरल बिम्स्टेक के कौन रहेंगे, दोनों देखते हैं। तो थर्ड कौन है? टेंजिंग लेकपाल। टेंजिंग लेकपाल को अब कौन सक्सीड करेंगे? वो है इंदिरा मानी पांडे। इंदिरा मानी पांडे जी ये अब फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बन गए हैं इंडिया के। एक और चीज, फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगे, राइट। तो आई रिपीट, इंदिरा मानी पांडे फोर्थ सिक्योरिटी जनरल बन गए हैं बिम्स्टेक के एंड पहले इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन। एंड तेंजिंग लेकपाल ये थर्ड सिक्योरिटी जनरल थे जिनको ये रिप्लेस करेंगे। अगर इनकी बात करें इंदिरा मानी पांडे की, ये एक आईएफएस ऑफिसर हैं 1990 बैच के। देन ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ इंडिया टू द यूएन। इसी के साथ साथ ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं ओमान के फ्रॉम 2015 टू 2018, इंडियन एम्बेसडर टू ओमान। देन ये डेप्टी एम्बेसडर टू फ्रांस भी रह चुके हैं 2013 से 2015 के बीच। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में आ जाता है आपका कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और अब फोर्थ सिक्योरिटी जनरल कौन है यहाँ के? इंदिरा मानी पांडे। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है LIC ये एक्वायर करेंगे हाउ मच परसेंट स्टेक इन RMBS एंटिटी। RMBS क्या है? रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में, राइट। तो NHB बैक्ड नेशनल हाउसिंग बैंक बेस्ड RMBS फैसिलिटी में LIC कितना परसेंट स्टेक एक्वायर करेगी? 10%, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ हाउ मच परसेंट स्टेक इन सिग्नेट बाय IMCD इंडिया। तो कितना परसेंट स्टेक? 30% स्टेक एक्विजिशन की बात की गई इन सिग्नेट बाय IMCD इंडिया। IMCD इंडिया होल्ड करते हैं 70% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन सिग्नेट, वेयर एज द रिमेनिंग 30% ये प्रोमोटर्स के पास है एंड ये कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा। नेक्स्ट है किस सिटी को नॉमिनेट किया गया फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन? वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन के लिए अभी रिसेंटली किन सिटी को इंडिया से नॉमिनेट किया गया? किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नॉमिनेट किया गया। कौन सी 3 सिटीज हैं? इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। इंदौर और भोपाल तो ये कहां से आ जाती हैं आपकी? इंदौर और भोपाल है मध्य प्रदेश से, उदयपुर आ जाती है राजस्थान से। तो ये वो 3 सिटीज हैं इंडिया की जिन्होंने रामसर कंजर्वेशन में काफी काम किया। जो उनकी रामसर साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग रूल्स बनाए हैं, राइट, उनको कंजर्व किया बेसिकली, करेक्ट। तो इन तीनों सिटीज को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। हमने देखा इंदौर, भोपाल, उदयपुर इनको नॉमिनेट किया गया। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अभी एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को प्रोक्योर कर रही है, बाय कर रही है और उसके लिए अप्रूवल मिल गया है CCI से? वो है पंजाब गवर्नमेंट। देन ग्लोबल ड्रोन हब बन रहा है। कौन सा बन रहा है ग्लोबल ड्रोन हब? कौन सी स्टेट बन रही है? महाराष्ट्र ग्लोबल ड्रोन हब बन रहा है। ठीक, मार्क करके चलेंगे। फिर एक्सेलर मित्तल इन्होंने पार्टनर किया किस IIT के साथ टू ऑपरेट एज अ हाइपरलूप फैसिलिटी, या फिर एक हाइपरलूप फैसिलिटी बनाने के लिए एक्सेलर मित्तल ने किसके साथ टाइप किया? IIT मद्रास के साथ यहां टाइप किया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 हेल्ड? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज जिसका नाम है सी ड्रैगन, ये एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट कहां पर हुई? पहले लोकेशन पर देखते हैं। यह है गुआम एयरफोर्स स्टेशन, गुआम, जो कहां पर है? USA में, राइट। 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। अगली चीज आपसे पूछूं तो मैं बताओ कितनी कंट्रीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में? तो 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, राइट, एंड USA, जहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। फिर इसी में याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में? तो P-8I ये एयरक्राफ्ट है जिसने पार्टिसिपेट किया इन दिस सी ड्रैगन
24 इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं P-8I एयरक्राफ्ट जिसने पार्टिसिपेट किया इन द 4th एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। कहां पर हुई? सी ड्रैगन, गुआम, यूएसए में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपके होमवर्क सेक्शन पर। पहला, विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स। दूसरा, रिसेंटली किस प्रिंटिंग प्रेस ने पब्लिश की एक बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ अ गाइडलाइन issued by University Grant Commission in India to instill human values and professional ethics in higher education institutions. चौथा, who has been recently appointed as the secretary of Railway Board. And पांचवा क्वेश्चन है आपका, who has been recently assumed the position of चीफ ऑफ स्टाफ एट सदर्न नेवल कमांड। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए एंड उन्हें बताइए अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अबाउट करंट अफेयर्स, जहां पर आप डेली बेसिस पे जो डेली की न्यूज़ है दुनिया के बारे में आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा कहां पर क्या हो रहा है, एंड आप करंट अफेयर से अप टू डेट रहेंगे। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.